my dear students, how are you all doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. I am taking your legal studies for class 12. Alright, this is part 4 of Unit 4 which is Human Rights in India. हम cover कर रहे हैं. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं we're going to talk about DPSP, which is Directive Principles of State Policies, as well as Fundamental Duties. Fundamental Rights already cover कर चुके हैं हम. Article 12 to Article 32 cover करता है Fundamental Rights, which have been talked about in my previous parts of the videos. In this video, we are going to talk about DPSP, which is Directive Principles of State Policies, as well as Fundamental Duties. So let's have a look. चलो ठीक है, देखते हैं. हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कवर हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 36 to 51 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इन्हें डीपीएसपी भी बोलते हैं. आई वांट टू टेल यू डिफरेंस क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है, हम किसी भी इंसान को अपॉइंट करने से पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट इंसान इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मेंबर, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है, एज वेल एज द मैनिफेस्टो ऑफ दैट पार्टी. तो वो मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो वो होता है जिसमें प्रोमिसेस, गाइडलाइंस दी होती हैं पार्टी की, आपको पता है. बट अब आप कहो कि सर्टेन गवर्नमेंट ने ये अपनी मैनिफेस्टो निकाला हुआ है, बीजेपी ने अपना निकाला हुआ है, इंडियन आईएनसी ने अलग निकाला हुआ है, कांग्रेस ने अलग निकाली हुई है अपनी मैनिफेस्टो. उस बेसिस पे उससे जो प्रोमिसेस लिखे हैं उस बेसिस पे हम सर्टेन पार्टी को इलेक्ट करते हैं. ऑलराइट, हमने उस पार्टी को सिलेक्ट कर लिया और लेटर ऑन वो उन प्रोमिसेस को, उन गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, ऑलराइट, तो इन दिस केस यू कैन नॉट जस्ट sue them. तुम उनको कोर्ट में ले जाकर sue नहीं कर सकते हो. Even if you sue them, court will not hear. Why? Because it is not their, our fundamental right is not getting infringed here. It is to manifesto का जो promises, guidelines है उनको complete करना is just a directive principle and it is not a fundamental right. infringe नहीं हो रहा है. DPSP unenforceable होते हैं. Directive Principles of State Policies are absolutely unenforceable. Fundamental right enforceable है. You can go to the court कि मेरा fundamental right breach हुआ है, infringe हुआ है, but you cannot go in case of infringement of Directive Principle of State Policies. Alright, ये बात समझ आई. Article 36 to 51 Part 4 of the Constitution lays down the guiding principles. Guiding principles, like I talked about, of governance, and what are they called? They are called DPSP, which is Directive Principles of State Policy. Alright, अब ये क्या होते हैं, इनके features क्या हैं? इनके features पढ़ लेते हैं. It is the duty of the state to apply these principles. ये state की duty होती है that you need to apply these principles in making laws and policies on, even if you talk about social development या फिर human का development की बात कर रहे हो, but इनको fulfill करना जरूरी है. चाहे DPSP enforceable नहीं होते हैं at court, I want to tell you, अगर government कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी ना जो कि public की welfare के लिए नहीं होगा, social development, human development को नहीं promote करेगा, 5 साल के बाद उस पार्टी को धक्के मार के निकाल दिया जाएगा. Why? Because you will not appoint a party that is only putting in writing in their manifesto that we are going to do this, we are going to do that, and not fulfilling. All right, तो ये बात समझ आई. You also have to live up to people's expectation. Popular vote, popular opinion लेने के लिए, आगे अपने this cases जीतने के लिए या फिर voting जीतने के लिए, elections जीतने के लिए, you have to be abiding by these principles, although these are unenforceable. All right, तो इसमें ये लिखा है, it is the duty to apply these. These principles are largely of the nature of economic and social rights. जहां fundamental rights negative rights है, DPSP बहुत positive rights है. Fundamental rights mostly concentrate on political aspects, political rights होते हैं, but these are economic and social rights.
आप कहोगे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट्स कैसे हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ दिस, ठीक है, तो उसमें ना हर चीज राइट टू इक्वालिटी, नो टू दिस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑलराइट। सो फंडामेंटल राइट्स में जो बात हो रखी है कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, ऐसे, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव राइट्स है, दैट यू हैव टू डू दिस, यू कैन डू दिस एंड सो फोर्थ, ठीक है, ये बात समझ आई। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल लाइक आई टॉक्ड अबाउट इट, फिर बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे प्रोवाइड गाइडेंस, एक गाइडेंस देते हैं इन कैरिंग आउट एंड ड्राफ्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज। कोई भी लॉज फ्रेम होते हैं, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डेफिनेटली रिगार्डिंग ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट इफ वी टॉक अबाउट। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कोई भी लॉ बनाया जाता है तो इनको दिमाग में रखते हुए बनाया जाता है, ये फीचर्स हैं। ऑलराइट, फिर देखो इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड द स्टेटस, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस दे दिया गया। फंडामेंटल राइट इसलिए कि वो एनफोर्स हो सकता है, लाइक राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। 86 अमेंडमेंट 2002 का मैंने आपको बताया था, 86 अमेंडमेंट है, एक्ट है 2002 ईयर का, लाइक वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पहले वो डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, अब वो फंडामेंटल राइट बन चुका है, आर्टिकल 21A में आता है। तो इसने क्या एग्जांपल दिया है, दैट फंडामेंटल राइट suggesting that they violate one's right to life. Right to life है, right to education is right to life, right to livelihood is right to life. All right, Article 21, such a basic article, we talked about it. फिर directive principles aim at promoting the welfare of the people. Yes, why? Because human social development के बारे में बात करते हैं. They are aimed at what? They are aimed at economic and social rights of the people. They intend to secure and protect, क्या क्या secure करते हैं? Social, इकोनॉमिक तो करते ही हैं, पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ इट्स सिटीजंस, पॉलिटिकल जस्टिस ज्यादा फंडामेंटल राइट्स करते हैं, बट दीज आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन्हीं के बेसिस पे लॉज बनाए जाते हैं, इन्हीं के बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम की जाती है। दीज प्रिंसिपल्स एंडेवर टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल वेजेस मिले, इक्वल पैसा मिले, इक्वल इनकम अर्न करे, एंड टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन व्हाट? स्टेटस के बेसिस पे इनइक्वालिटीज हटा देनी चाहिए, फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए अमंगस्ट बोथ इन, इवन इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स और यू टॉक अबाउट ग्रुप्स ऑफ पीपल, सबके बीच में एक हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, दैट नोबडी इज अर्निंग मोर, इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन द स्टेटस, बेस्ड ऑन दीज फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल मिलनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज गाइड स्टेट टू अचीव वेरियस गोल्स। क्या क्या गोल्स हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, इनके दीज आर बेसिकली गोल्स ओनली। अब आप ये मत सुनना ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, नो, दीज आर नॉट मॉरल ऑब्लिगेशंस। ऐसे नहीं कि अपने दिल से करो तो करो, नो। अगर गवर्नमेंट ये सब नहीं परफॉर्म करेगी ना तो गवर्नमेंट आगे उसको वोट नहीं मिलने वाला है, और पॉपुलर वोट के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। आई वांट टू टेल यू दिस, राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए मेन और वुमेन के लिए, इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इफ यू कैन लर्न सम यू कैन, अगर अच्छी बात है लर्न कर लो तो, बट यू नीड नॉट मग अप ऑल ऑफ दीज, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए, बस ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक बार इनको रीड कर सकते हो आप। ऑलराइट, ये देखो ये सब एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, वी नीड नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, इवन इफ यू कैन स्टेट द एग्जाम्पल्स 2, 3, 4 यू कैन रिमेंबर, दैट्स द मैक्सिमम। एग्जाम्पल स्टेट कर सकते हो, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए फॉर द सिटीजंस, वन यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है क्या होता है? जो हर स्टेट में सेम लॉज होते हैं इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो दीज आर सम ऑफ द DPSPs that have been talked about. There are certain various articles for that matter, but we are not going to go into the deep of it. Why? Because आपकी बुक में ये सब मेंशन नहीं है। ये आर्टिकल 21 के बारे में बात कर रहा है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। See, Supreme Court has raised the status of many provisions of DPSP to that of fundamental rights, like we talk about that somebody's right to life has been violated in case of right to education, right to livelihood की बात की होगी। As discussed earlier, children of the age of 6 to 14 के बीच में मैंने आपको बताया था, मैंने अगर पिछली वीडियो जाकर चेक कर लो, आप जाकर चेक करो, उसमें बताया था 6 to 14 के लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years of age।
ऑलराइट, फिर उसको पहले डीपीएसपी था, अब क्या हो चुका है, रेज कर चुका है स्टेटस पे, अब वो फंडामेंटल राइट बन चुका है। दैट डिप्राइविंग वन फ्रॉम द एजुकेशन मींस डिप्राइविंग वन टू द राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21A यही कहता है। अकॉर्डिंगली राइट टू एजुकेशन फॉर एजेस 6 to 14 अब क्या है, एक फंडामेंटल राइट का चैप्टर बन चुका है, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट, जिसमें बोला है पहले डिस्कशन हो चुकी है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है राइट टू लाइवलीहुड का। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर तुम स्लम एरियाज में से लोगों को हटा रहे हो, देखो यू कैन सी दिस हियर, स्लम डिवेलर्स, इफ यू आर जस्ट इनको एंक्रोचमेंट बोलते हैं, इनको हटाना, इनको हटा रहे हो तो उन्हें एक रिहैब सेंटर भी दो। रिहैबिलिटेशन मतलब उनको कहीं रहने की जगह भी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए दे शुड नॉट बी होमलेस। होमलेस नहीं हो ये लोग। You have to rehabilitate slum dwellers whenever they are evicted on the grounds of encroachment। इनको हटाया जाता है, जब evict किया जाता है उस जगह खाली करो, हट जाओ यहाँ से, तो उनको रिहैब प्रोवाइड करने चाहिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। So eviction without rehabilitation closer to their work amounts to violation of their right to livelihood। Right to livelihood will amount to right to life, और ये फंडामेंटल राइट इनका इन्फ्रिंज हो रहा है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये डीपीएसपी, बट ये राइट टू लाइफ के अंदर भी आ रहा है। ऑलराइट, ये बात समझ आई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। जैसे पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बात करता है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, विच इज 51A। पहले 10 थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब एक और ऐड हो गई थी, A to J था, K और ऐड हो गया था। A to J was 10 fundamental duties, K was also added, K was the 11th fundamental duty थी वो, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको बता दिया। पार्ट 4 देखो लिखा होगा, पार्ट 4A आर्टिकल 51A में सब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन इन दैट सर्टेन कंडक्ट एंड बिहेवियर। कुछ कंडक्ट और बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है। फंडामेंटल राइट्स भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, आर एक्सपेक्टेड ऑफ द सिटीजंस। द सेलिएंट फीचर्स के कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स, लाइक आई टॉक्ड अबाउट, इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेशन ऑफ द ड्यूटीज। अगर तुम इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारे ऊपर केस नहीं हो सकता है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। नो वन कैन बी पनिश्ड, किसी को पनिशमेंट भी नहीं मिल सकती है, नो वन कैन बी पनिश्ड फॉर दैट मैटर। फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टैंडर्ड्स मतलब एक गोल्स हैं टू बी अचीव्ड, एक एम है टू बी फॉलोड बाय द सिटीजंस। तो एक ड्यूटीज है दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये सही है, ये गोल है हमारा। फिर दे रिमाइंड सिटीजंस नॉट टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ह्यूमन को बिहेव करना चाहिए, बट help building a free, democratic and strong society. Your duty, your fundamental duty is to bring a strong society. You have to build this, a free society build करना पड़ेगा, एक democratic and strong society you have to build by following the fundamental duties. ये fundamental duties कुछ दी हुई हैं, we need not go into deep of it, learn नहीं करनी है इनको, आपको एक बार रीड जरूर करना पड़ेगा इन्हें, आपको पता होनी चाहिए ये क्या है। Here respecting the constitution and institution, national anthem, national flag को आपको पता है ये सब ना अभी आगे आएगा। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को कुछ लेजिस्लेशंस ने इनको एनफोर्स भी करा दिया है, और कहने को तो फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है, बट आगे आप देखोगे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स भी करा दिया गया है। क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है? आपकी बुक में ये नहीं है, बट आई वांट टू टेल यू, जैसे यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये लिखा हुआ है ना, बट एक केस लॉ है, विल नॉट गो इनटू द केस लॉज नेम, केस लॉ का नाम नहीं बता रही हूँ, बट उसके फैक्ट्स बता देती हूँ कि एग्जाम में लिखना नहीं है, बस सुन लो कि जो दिस नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग रिस्पेक्ट तो करना है, बट इट इज अपॉन योर डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू सिंग द नेशनल एंथम और यू मे नॉट सिंग द नेशनल एंथम। इफ यू डू नॉट सिंग, इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल एंथम। तो ये सब चीजें बहुत सारे लेजिस्लेशंस में बात हो रखी है इसके बारे में। ऑल्दो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल, कोई एक्ट पास करके इनके बारे में बात हो सकती है, इनको एनफोर्स कराया जा सकता है, बट वो लेजिस्लेशन ओनली। वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस, सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीट मैकेनिज्म बताया क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज का। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज वो होती हैं दैट अपीयर टू बी ऑफ जुडिशरी, बट वो
जुडिशियल बॉडीज एक्चुअली नहीं होती हैं, वो कंप्लीट जुडिशियल बॉडीज नहीं होती हैं। दीज आर पार्टली जुडिशियल पार्टली एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज आर टिपिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं। ये वर्ड याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, मेरे साथ ही रटेंगे, हम साथ में रटेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं अंडर द रियल्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो होती है जो एनफोर्स कराती है लॉज को। ऑलराइट, तो आप कहोगे अब जुडिशियल बॉडीज तो एनफोर्स कराती नहीं है, बट क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी का काम यही होता है, कुछ जुडिशियल काम करती है, वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करती है। इट इज लार्जली बिस्टोर्ड विद द अथॉरिटी सिमिलर टू कोर्ट्स। सिमिलर टू कोर्ट्स मैंने बताया होती है, बट वो एग्जीक्यूट भी कराती है लॉज। दीज बॉडीज हैव पावर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व करा रही है एज इन केस ऑफ कोर्ट्स, and it also imposes punishments as in case of what the executive branches does. For example दिया हुआ है quasi judicial institutions का कौन कौन सी होती है। For example NHRC होगा, National Human Rights Commission, state level पे भी होता है ऐसे ही। फिर Central and State Information Commissions है, ये सब examples दिए हुए हैं। Consumer Redressal Forum and Commissions, फिर ये National Commission for Women होता है NCW, फिर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स एंड सो ऑन। यू कैन टेल दीज एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। सम ऑफ दीज बॉडीज स्पेसिफिकली टू द ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है वो ही आपके चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो रखा है उसके बारे में, तो हम पढ़ लेते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल वंस आर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, NHRC बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। दैट इंक्लूड्स NHRC है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वुमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सब आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फिर NCST होगा, NCSC, NCST होता है, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब भी आपकी बुक में इसके बारे में डिस्कशन हो रखा है, तो हम भी पढ़ेंगे। दीज कमीशंस आर इंडिपेंडेंट होती हैं, या फिर ऑटोनॉमस ही बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट का दूसरा वर्ड ही है ऑटोनॉमस, एंड दे आर ट्रांसपेरेंट, मतलब इनके बारे में खुले में इंफॉर्मेशन जो भी इनके अंदर चल रहा है वो आउट हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है। दैट आर क्रिएटेड अंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, ये अंडर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ही फॉर्म हो रखी है, हवा में फॉर्म नहीं हो रखी है, कोई भी रैंडम ग्रुप इनको फॉर्म नहीं कर सकता है, कोई ना कोई लेजिस्लेशन इसके पीछे होती है तब ये फॉर्म हो रखी होती है। टू प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना ह्यूमन के राइट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर गवर्न्ड बाय, देखो दिस इज NHRC है, दिस इज गवर्न्ड बाय, या फिर स्टेट की बात कर लो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दिस इज गवर्न्ड बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इसको गवर्न करता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेशनल कमीशंस हैव जुरिसडिक्शन ओवर द एंटायर नेशन, NHRC पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, like I told you, and the parallel state commissions take matters of human rights violation from the respective state. स्टेट्स की अलग होती है, ऐसी नेशनल की नेशन वाइड अप्लाई होती है, ऐसी पैरेलल एक स्टेट की भी काम करती है। ऑलराइट, ये बात समझ आई, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज समझ आ गया क्या होता है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सिर्फ इस वीडियो में हम NHRC पढ़ने वाले हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगली वीडियोस में हम माइनॉरिटीज, SC ST वुमेन के बारे में कवर करके इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा समझो इस चैप्टर को, अपने वर्ड्स में भी हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ईयर्स वगैरह ये सब रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम क्विजेस लेंगे, इन क्वेश्चंस भी पिकअप करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, पर पहले हमें मैटर पता होना चाहिए। द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, अभी देखेंगे नहीं कौन सा, ऐसे लिखा ही नहीं हुआ है, ये कौन से ईयर में आया था, 1993 में आया था। दिस वाज एनैक्टेड इन, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1993, अब हमें याद होगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट which is in the year 1993, ये किसको लाया था, NHRC को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। We have learned it here, ये याद हो गया हमें तो। फिर which in turn established NHRC which is National Human Rights Commission as an independent institution, independent है institution, transparent है, autonomous है, independent है, we can call it anything, with powers and functions to promote करना और इसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, इसका यही सोल पर्पस है, इसका यही सोल ऑब्जेक्टिव है। फिर दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है नेशन वाइड के लिए, ऐसे स्टेट
ह्यूमन राइट कमीशन है वो है स्पेसिफिकली स्टेट्स के लिए। एट स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल पे है। फॉर एक्सेस टू कंप्लेंट मैकेनिज्म, कंप्लेंट आप कर सकते हैं, हम लोग ही कर सकते हैं जब हमारा ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, हमारे ह्यूमन राइट्स को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कौन है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। फिर नेशनल कमीशन इज हेडेड बाय हूम? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन ये कौन होता है? जो पहले चीफ जस्टिस रह चुका है। अभी कौन है? अभी HL दत्तू है। एक बार चेक कर लेना, वो शायद रिटायर हो गए हैं 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 2020 को। अभी कोई न्यू अपॉइंट नहीं हुआ है और मे बी ही इज कंटिन्यूइंग, एक बार चेक कर लेना। बट अभी HL दत्तू है। ऑलराइट, वो क्या है? वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है चेयरपर्सन हमेशा एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होता है जो एक रिटायर हो चुका है। ऑलराइट, फिर द अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन आर, कौन कौन से और मेंबर्स होते हैं कमीशन के? वन मेंबर हु इज अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, या करंट या फिर प्रेजेंट या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट का। एंड 2 अदर मेंबर्स जिनके नॉलेज है, एक्सपर्टीज है इन मैटर्स रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स। तो हमने कौन कौन से पढ़ लिए? देखो, एक तो चेयरपर्सन हो गया। चेयरपर्सन कौन हुआ? रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो गया। फिर एक होगा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, ठीक है। फिर एक होगा प्रेजेंट या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 people who have expertise and knowledge। एक्सपर्टीज है उनके पास या नॉलेज है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बट आज कहा जाता है कि 7 लोग होते हैं। देखो, इसमें यही बात हो रही होगी। द अदर मेंबर्स आर 1 मेंबर जो एक फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट का, अनदर मेंबर या तो प्रेजेंट या फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुका है हाई कोर्ट का, एंड 2 अदर मेंबर्स विद नॉलेज और एक्सपर्टीज जिसको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता हो। अभी ये 5 बताए हुए हैं, ठीक है, होते 7 हैं। बिसाइड्स देयर इज सेक्रेटरी, लाइक आई टोल्ड यू, सेक्रेटरी जनरल होता है जो कि CEO माना जाता है, CEO ऑफ द कमीशन। ऑलराइट, हु लार्जली डिस्चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। उसका मेन काम क्या होता है सेक्रेटरी जनरल का? सेक्रेटरी जनरल का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को देखना, एग्जीक्यूशन को देखना कि एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑलराइट, फिर द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, अभी हम पढ़ते हैं कौन अपॉइंट करते हैं। तो हमने पढ़ लिया, देखो 6 तो हमने यही पढ़ लिया है। बट इफ यू जस्ट गूगल इट करो या फिर कोई भी आप जाकर चेक करो, एक प्रिस्क्राइब नंबर 7 होता है। आई बिलीव दिस कीप्स चेंजिंग, ये नंबर चेंज करता रहता है विद टाइम। कुछ सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, somebody else comes। तो ये वैसे प्रिस्क्राइब नंबर 7 ही होता है। 6 7 में कंफ्यूज मत हो, आपकी बुक में कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में। तो बस जो बताया हुआ है, कौन कौन मेंबर बन सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल की भी बात कर लिया हमने, चेयरपर्सन कौन होता है, नॉलेज किसकी होनी चाहिए, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज की बात भी हम कर चुके हैं। तो इससे ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते चलो। चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय हूम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज से ज्यादा लोगों को यही अपॉइंट करते हैं। तो फिर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंसल्टेशन ऑफ हूम? रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कमिटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल विच इज लोकसभा, ठीक है। या तो इसका स्पीकर है या तो नहीं, दिस कमिटी कंसिस्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द सेंटर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देख लो कौन कौन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंसल्टेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज कौन? डेप्यूटी। देखो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the recommendation, on the consultation of all of कौन कौन? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ और हु ऑल। ये कमिटी जो होती है किस किसकी कमिटी होती है? दिस कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब आप कहोगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं? क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। बट इसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑलराइट, फिर किसकी बात हो रही है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात। तो ठीक है, कौन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द एट द सेंटर लेवल,
और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है? अगर मेरे को याद है तो आपको क्यों नहीं याद है? आपको भी याद इसे करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर टॉकिंग अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन, तो कमीशन के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं। तो कमीशन इज वेस्टेड विद द फंक्शंस एज गिवन बिलो। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेफिनेटली। वी आर टॉकिंग अबाउट एनएचआरसी व्हिच इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एनएचआरसी बहुत कॉमन है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। One of the commission's role is to conduct inquiry and investigation. Definitely we know inquiry and investigation into what? Into alleged violation of human rights. कहा गया है कि मेरे human rights को violate किया गया है, जो मेरे basic rights है मुझे नहीं मिल रहे हैं। और अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब या तो तुमने सपोर्ट किया है या तुमने एड किया है, अगर तुमने डायरेक्टली किसी का फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट नहीं, ह्यूमन राइट किसी का वायलेट किया है या किसी को सपोर्ट किया है कि दूसरा इंसान दूसरे इंसान का ह्यूमन राइट ब्रेक करे, एड करा है, सपोर्ट किया करा है, सो दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। या तुमने नेग्लिजेंस शो करी है इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, बट दिस हैज टू बी बाय अ पब्लिक सर्वेंट ओनली। इफ से अ नियर बाय हाउस, तुम्हारा नेबर तुम्हें न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, पूरी रात को कंस्ट्रक्शन करके तुम्हें नींद नहीं आ रही है, या जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, फॉर इंस्टेंस तुम्हारा नेबर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, पूरी रात कंस्ट्रक्शन चल रही है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, और जो कंस्ट्रक्शन के सामान है वो सामान तुम्हारे घर में गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, गाड़ी का शीशा टूट गया, विंडोज को नुकसान हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इज दिस? ये हमारा ह्यूमन राइट ब्रेक हो रहा है, वायलेट हो रहा है, हम एनएचआरसी को अप्रोच कर सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर infringement of human right has to be by a public servant only. The complaint can be filed by the victim, या तो victim खुद complaint file कर सकता है या उसका representative, why representative in the case when the section जिसके साथ गलत हुआ है, जो victim है वो बहुत weaker section से belong करता है, उसके पास appropriate resources नहीं है, like we talked about PIL के केस में। PIL के केस में कोई और public spirited person, कोई lawyer जाके किसी और के basis के ऊपर केस फाइल कर देता है। Similarly in this case also filed by the victim or his representative, or the court may direct, court ये भी कह सकता है commission को with a complaint, and at times the commission may institute inquiry and investigation on its own also। अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐसी रिपोर्ट छप रही है जहां पे वो suo moto cognizant ले सकता है, suo moto मतलब on its own, in its own motion ले सकता है कि हाँ certain human right has been violated, although इसकी complaint commission को नहीं हुई है, but हमने देखा है कि human right violate हुआ है, and NHRC इसके ऊपर केस कर सकती है, इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल द कमीशन में इंक्वायर suo moto बेस, लाइक आई टॉक्ड अबाउट suo moto मतलब होता है इन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। suo moto बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन इट्स ओन भी कर सकता है। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, कोई न्यूज आई है, कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है थ्रू द मीडिया, उसको देखते हुए कुछ भी ऐसे पब्लिश कर सकता है, कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। suo moto inquiries especially useful जब victim belong करता है weaker section के ऊपर, like I told you representative की जरूरत भी तभी पड़ती है। Similarly weaker section के लिए भी यही होता है कि weaker section क्या होता है, वो लोग, इनके पास appropriate resources नहीं होती, इतनी means नहीं होती हैं NHRC तक पहुंचने के लिए, तो वो suo moto on its own cognizance करने लग जाता है, डिटेल एनालिसिस कर जाता है, and they have limited access to justice delivery mechanisms। उनके पास इतनी ज्यादा जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म्स नहीं है, इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतने मींस नहीं है। तो कमीशंस के पास क्या होता है? इट्स दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होता है? हमें डैमेजेस मिलते हैं, कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। तो दिस हैज बीन कंपेयर्ड, NHRC हैज बीन कंपेयर्ड टू अ सिविल कोर्ट एंड नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। एंड कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इट कैन यूटिलाइज इट्स पास इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। देखो ये पास बहुत अच्छे से याद करना, और सारे कमीशंस के भी ये पास है, तो मैं रेफरेंस दूंगी कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। ऑलराइट, जो माइनॉरिटीज है, फॉर इंस्टेंस कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर SC ST, ये सब जो हैं उनके भी यही सब पावर्स हैं, तो हम इनको भी रिइटरेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन किसी का भी आए, मोर और लेस पावर्स आर द सेम। ऑलराइट, तो आई विल रेफर टू दीज, हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस, क्या क्या पावर्स है? जैसे सिविल कोर्ट की होती है, ऐसे कमीशन की भी कुछ पावर्स हैं।
So summon and enforce the attendance of the witnesses and examine them on oath. समन करना मतलब एक नोटिस भेजना, टू कॉल फॉर, यू हैव टू आस्क दैट पर्सन कि आपको आना पड़ेगा, एक नोटिस भिजवा देना, उसे समन बोलते हैं. दैट यू हैव टू अपीयर इन कोर्ट एंड यू हैव टू एनफोर्स द अटेंडेंस की वो यू हैव टू मेक श्योर दैट पर्सन इज देयर, इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे of the witness and examine them on the oath कि आप जो भी बोलेंगे आप बिल्कुल सच बोलेंगे. ये किसका पावर है? ये पावर है कमीशन का. फिर ask for the production of any document, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी आप बोल सकते हो. ऑलराइट, जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है. यू कैन रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स आल्सो, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट. यू कैन रिक्वेस्ट पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ ऑफिस, कोर्ट और ऑफिस से आप कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड भी ले सकते हो. Fifth, you can also examine witnesses or you can also examine documents. तो हमने कौन कौन से 5 पढ़े हैं? The very first is you can summon and enforce the attendance. आप उसको बुला सकते हो, enforce कर सकते हो attendance को. फिर you can ask for any of the documents that are required. फिर आप evidence ले सकते हो, affidavits के ऊपर भी evidence receive कर सकते हो. Then you can also request public records हो सकते हैं from any court या office. Fifth and the last, you can examine witnesses or documents. These are the 5 powers. You have to learn all of these powers. इनको याद करना आपको पड़ेगा. All right, next पढ़ते हैं. फिर once this inquiry is completed, the commission can make recommendation. Recommendation कर सकता है एक सुझाव देना. Recommendation मतलब एक सुझाव देना to governmental authority in cases where public servant बहुत important है. परपेट्रेटर मतलब जिसने गलत किया है, जिसने वायलेट किए हैं राइट्स, जिसने कुछ भी गलत काम किया है. ऑलराइट, परपेट्रेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उसने ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, ब्रेक किया है. द रिकमेंडेशन मे इंक्लूड पेमेंट. एक पेमेंट हो सकती है कि आप कंपनसेट करो, आपने ये गलत किया है, यू हैव टू गिव कंपनसेशन टू द विक्टिम्स. और यू कैन सजेस्ट इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर प्रोसिक्यूशन. आप प्रोसीडिंग्स भी शुरू करवा सकते हो. Although it has powers of that of a civil court, but it also has the power to get the the legal proceedings initiate आप करवा सकते हो, because the circumstances are such. Based on the circumstances और अपने पार थोड़ा सा चेंज भी कर देता है, मोल्ड भी कर देता है. प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब उसको बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया जाए ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. इट वर्क्स ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. कमीशन कैन ऑल्सो अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट भी जा सकती है फॉर डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स. कोई भी डायरेक्शन देने के लिए, कोई ऑर्डर देने के लिए जा सकती है कमीशन. ये सब होता है आफ्टर द इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इज डन. द कमीशन मे आल्सो आस्क द स्टेट अथॉरिटी टू प्रोवाइड इमीडिएट इंटरिम रिलीफ. इंटरिम रिलीफ इमीडिएट, फॉर इंस्टेंस, अब आप पूछोगे इमीडिएट रिलीफ क्या होता है? इमीडिएट मेजर्स कौन से होते हैं? देखो, टेम्पररी रिलीफ दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस, कोई इंजंक्शन दे देना, कोई ऑर्डर दे देना, या फिर क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल देती हूँ. एक एम्प्लॉय बुक रिलीज कर रहा था और उसके बाद उस बुक में एम्प्लॉयर को बहुत ज्यादा डिफेम किया गया है. तो एम्प्लॉयर ने केस करा कि ये एक बुक पब्लिश करने जा रहा है और उसके अंदर मेरे डिफेम किया जा रहा है मुझे बहुत ज्यादा. तो कोर्ट एकदम इंटरिम मेजर्स क्या देगा? कोर्ट एकदम इंटरिम मेजर देगा कि इस बुक को पब्लिश होने से रोक दिया जाए. ऑलराइट, अभी मार्केट में नहीं है, इसको पब्लिश आप नहीं कर सकते हो. जब एक बार केस आ जाए कि हाँ he is absolved of this guilty, कि वो गिल्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, जो उस बुक के अंदर लिखा हुआ है वो सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसे डिफेम नहीं किया हुआ है, तब वो बुक पब्लिश हो सकती है. बट इंटरिम रिलीफ क्या हुआ? एकदम से जो कोर्ट दे देती है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बट एक टेम्पररी रिलीफ दिया है कि इस बुक को अभी होल्ड कर दिया जाए, इसको कंटिन्यू नहीं किया जाए पब्लिश होने के लिए. फिर इंटरवीनिंग इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स. कमीशन का एक पार ये भी होता है कि वो इंटरवीन कर सकता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में. Commission may with the permission of the court, but it has to take the permission of the court, intervene in court proceedings concerning human rights violations. कहीं भी human rights violations हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जा सकता है, इंटरवीन कर सकता है, उसके डिस्कस कर सकता है एट लेंथ. दे कैन थिंक टुगेदर, पॉन्डर कर सकते हैं आपस में साथ बैठ के. सो इट इंटरवीन्स मतलब पार्टिसिपेट, उसके अंदर इंटरवेंशन उसका होता है. For example, Commission can request the Supreme Court to transfer the pending riot cases. देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कमीशन कह सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि ट्रांसफर कर दो जो राइट केसेस हैं, जो दंगे हुए थे उसके जो केसेस हैं, स्टेट से बाहर कर दो, उनको ट्रांसफर कर दो इन विच राइट्स हैड हैपेंड, टू इंश्योर. क्यों करें ट्रांसफर भाई? क्योंकि विटनेसेस को थ्रेटन ना किया जाए. कभी कभी क्या होता है, विटनेसेस को थ्रेटन किया जाता है, अगर तुमने विटनेस दिया ना, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर खत्म कर दूंगा, ऐसे धमकियां दी जाती है कि विटनेस को थ्रेटन ना किया जाए और एविडेंसेस डैमेज ना हो. मतलब जो एविडेंसेस है उनके पास, उनको नष्ट ना कर दिया जाए, उनको
बहा दिया जाए या उनको नष्ट कर दिया जाए, जिससे पता ही नहीं लगे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है विच मीन्स इट इंटरवीन्स इन दी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। फिर इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स, कमीशन इंस्पेक्शन भी कर सकती है जेल की या अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस जहां पे प्रिजनर्स दे आर बिहाइंड द प्रिजन्स, दे आर लॉज्ड और डिटेन्ड हो रखे हैं वो लोग, उनको भर्ती किया गया है टू स्टडी द लिविंग कंडीशंस, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या है, क्या उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं ऑफ द इनमेट्स, एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन भी दे सकता है कि जो लोग प्रिजनर्स हैं उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, उनको ठीक से रखा जा रहा है, उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिक राइट है, बेसिक राइट टू लाइफ ही तो हुआ ह्यूमन राइट। ऑलराइट, ये बात समझ आई। फिर दे टॉक अबाउट अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है। कमीशन रिव्यू कर सकता है बहुत सारे ह्यूमन राइट लॉज को, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे वो किसी और लेजिस्लेशन में आ रखे हो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अदर स्टैट्यूट होते हैं, रिटन लॉज, एंड रेकमेंड मेजर्स दे सकता है गवर्नमेंट को फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। हाउ कैन दे बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, वो लॉज कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। द कमीशन कैन ऑल्सो इवेल्युएट वेरियस फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म के एक्ट्स को रिव्यू कर सकता है, फिर which prevent the enjoyment of human rights का violation होता है in acts of terrorism। फिर they can recommend appropriate dial measures, कौन कौन से measures, frequent जो measures ले लेने चाहिए गवर्नमेंट को। फिर कमीशन का रोल includes studying various international human right laws, क्या करता है ये ह्यूमन राइट लॉज को पढ़ता है जो इंटरनेशनली अप्लाई हो रहे हैं, वेरियस कंट्रीज में अप्लाई हो रहे हैं, और वो रिकमेंडेशन किसको देता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन टू देयर डोमेस्टिक लेवल, मतलब विद इन द स्टेट क्या होना चाहिए, विद इन द स्टेट क्या होना चाहिए, या फिर यू नो एट एनी लेवल इन आवर नेशन, हमारे होम कंट्री में कैसा होना चाहिए, इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो और लॉज को पढ़ता है कि हमारे इंडिया में क्या बेनिफिशियल हो सकता है, क्या बेनिफिट कर सकता है। फर्दर द कमीशन कैन अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च कर सकता है ह्यूमन राइट्स में, ये भी इसकी एक अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी उनको पढ़ाना, सबको बताना कि ये तुम्हारा ह्यूमन राइट है, इसे ये इन्फ्रिंज नहीं हो सकता है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो, अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो इलिटरेट है, जिनको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है, एंड दे कैन प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स, जो प्रोटेक्शन मिलती है अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स थ्रू पब्लिकेशन मतलब बुक्स जो ऑथर से लिखवा सकते हैं, मीडिया है, सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, एंड अदर अवेलेबल मीन्स, इन सब के थ्रू एक सेंसिटाइज कर सकते हैं, यू कैन टेल पीपल, इन्फॉर्म पीपल अबाउट इट। लास्टली द कमीशन कैन एनकरेज एंड सपोर्ट, इट कैन ऑल्सो एनकरेज कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इन्वॉल्व विद द ह्यूमन राइट्स वर्क। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो अपने लॉज पढ़ती है, बाहर के लॉज पढ़ती है, रिकमेंडेशंस करती है गवर्नमेंट को, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट, तो ये भी बताया मैंने आपको वो कैसे एनकरेज करती है, कैसे सपोर्ट करती है, इट मास लिटरेसी प्रोवाइड करती है कि जिन लोगों को नहीं अकल है, जिनको नहीं समझ है कि क्या होना चाहिए, क्या ह्यूमन राइट्स होते हैं, वायलेट नहीं होने चाहिए, उनको भी ये अवेयरनेस प्रोवाइड कराती है। फिर वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है। द कंप्लेंट मैकेनिज्म प्रोसीजर विद द नेशनल NHRC बहुत इजी है, ठीक है, कैसे इजी है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा इजी है। एनीवन अग्रीव्ड मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जो हर्ट पार्टी है, जिसके साथ वायलेशन हुआ है, या उनका रिप्रेजेंटेटिव, लाइक आई टोल्ड यू, रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है इन केस वीकर सेक्शन है, या फिर द पर्सन डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड मीन्स, इट कैन लॉन्च अ कंप्लेंट टू द कमीशन इन एनी लैंग्वेज, एनी हमारी 22 लैंग्वेजेस जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उस किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है। द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एट www.nhrc.in, ठीक है, nic.in है, nic.in, ऑलराइट, www.nhrc.nic.in, nic.in, और या पेपर पिटिशन भी फाइल हो सकता है यूजिंग कंप्लेंट फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। कंप्लेंट कैन बी सेट बाय, या तो पोस्ट कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो, दीज आर ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, ईमेल भी कर सकते हो, कोई फी नहीं है, देयर इज नो फी फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लगता है। फिर कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ ईयर, बट जब तुम्हारा ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है विद इन अ ईयर आपको फाइल करना है, 1 साल के बाद वो इनटू कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। फिर वंस कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर द कमीशन, आप ऑनलाइन भी इसको जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट अभी तक कहाँ पहुंच गई है, क्या इसको रिजॉल्व कर दिया गया है या नहीं किया गया है, तभी कहते हैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ओपन टू पब्लिक है, कोई भी इंसान जाकर फाइल कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग ही फाइल कर सकते हैं।
ऑल राइट, आई होप दिस वीडियो हैज प्रूवन यूजफुल, आपको यूजफुल रहा होगा। ये पार्ट 4 था यूनिट 4 का। पार्ट 5 एक और पेंडिंग है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, हम SC ST की नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर वी कॉल एन एंड टू यूनिट 4, टाटा बाय बाय कर देंगे, फिर हम शुरू करने वाले हैं लीगल प्रोफेशन। ऑल राइट, आई होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी रिव्यूज हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई वांट टू टेल यू, लर्न करो ऐप डाउनलोड करके देखो यार, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू मस्ट गो एंड चेक आउट आवर ऐप, इट इज बिल्ड बाय आवर टेक टीम, हमारी टेक टीम ने बनाई है ये लर्न करो ऐप। यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट, जाकर अभी के अभी चेक करके आओ। इसके अंदर सब नोट्स अवेलेबल हैं, सब वीडियोस लाइंड अप है प्रॉपर्ली, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यूट्यूब पे आपको बार बार आके चेक करना पड़ता होगा। यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन आवर ऐप। लर्न करो ऐप के ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पे हर वीडियो अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू सुपर सून। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन आई एम नंदिनी छाबड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।